Good morning, students. Now we will discuss about the properties of the determinants. It's a topic of chapter determinants. First of all, I explain you that what is the properties of determinants. Properties of determinants, it's valid for. We will discuss about the order 3 determinants. Properties of determinants for order 3. But it is also true for any order of determinants. Now, what is the properties of determinants? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स जो होते हैं इनके बेस पे डिटरमिनेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को या बहुत सारे क्वेश्चंस को इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग. प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे आपके 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है. अगर कोई भी रो या कॉलम डिटरमिनेंट्स का 0 वैल्यू रखता है, किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. अगर इफ any two row or column are identical, then the value of the determinants is also 0. If any row or column, elements of any row or column are 0, then the value of the determinants is 0. If the value of the determinants is not changed when row are interchanged to the corresponding column of any determinants. Property 4. Other property, any two row or column are interchanged of any determinants, then the value of the determinants have a negative sign. And now, like this, there is some 7 properties which helps to solve the questions. Now, we will discuss at the board. First property, what is the property? Any row or column have all elements 0 या all elements 0 of any row or column of any determinants, then the value of the determinants will be 0. यानी किसी भी determinants का रो और कॉलम कोई भी उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वैल्यू 0 होगी. सेकेंड प्रॉपर्टी, any row or column are interchanged to each other of any determinants, then there is no change the value of the determinants. Means the value of the determinants is not changed when row is changed corresponding to column. यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1 फर्स्ट रो के करस्पॉन्डेंस में फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. प्रॉपर्टी थर्ड, व्हाट इज दैट? इफ any two row or column are interchanged to each other, then the value of the determinants will have a negative sign of original determinants. यानी किसी भी डिटरमिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स निगेटिव साइन रखता है ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स का. वैल्यू सेम रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, बस उसकी साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट, एनी 2 रो और कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स विल बी 0. किसी भी डिटरमिनेंट्स का 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी 5, if every element of same column or row in the sum of 2 terms, then the determinants is equal to the sum of two determinants, one containing only first element, place of each sum, the other contains the second term. Means what is this? अगर कोई डिटरमिनेंट्स का कोई रो और कॉलम इसमें किसी टर्म के साथ सम को रखता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 डिटरमिनेंट्स के सम के इक्वल होगी. पहला डिटरमिनेंट्स पहले टर्म को रखेगा, बाकी रिमेनिंग सेम होंगे, और दूसरा डिटरमिनेंट्स दूसरे टर्म को रखेगा, बाकी रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगे? सेम होंगे, और इन दोनों के सम के बराबर ये डिटरमिनेंट्स होगा, इसकी वैल्यू होगी. प्रॉपर्टी 6, एनी डिटरमिनेंट्स. अब देखिए प्रॉपर्टी 6 क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी 6?
प्रॉपर्टी 6 सेज कि किसी भी डिटरमिनेंट्स का अगर कोई भी रो और कॉलम किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स के। मीन्स आप क्या कह सकते हो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम multiplied by a constant k, then the value of new determinants will be the k times of original determinants. कोई भी रो और कॉलम अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स के टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट वन मोर प्रॉपर्टी इज व्हाट, वन मोर प्रॉपर्टी इज दैट इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or column of determinants is multiplied by a constant k, देखिए a1 b1 c1, अब इसमें जो है हम लोग k b1 प्लस k a1 b1 c1 सॉरी a1 a2 a3 प्लस k b a1 a2 a3 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा a1 a2 a3 b1 और b1 b2 एंड b3, ये टर्म एक साथ है आपके और ये अलग है। अब आप इसको जब सेपरेट करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा आपका c1 c2 c3 प्लस k टाइम्स ए b1 b2 b3 और फिर b1 b2 b3 और c1 c2 c3, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। मीन्स मैं क्या बता रहा था, आप स्टेटमेंट को सुनिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो or column of determinants is multiplied by a constant k, यानी b1 b2 b3 सेकेंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दे एंड एडेड द अदर रो और कॉलम added to corresponding elements of same other row, then the value of the determinants remains the same. मतलब किसी भी डिटरमिनेंट्स में किसी रो और कॉलम का k टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको किसी अदर रो और कॉलम में ऐड कर दे तो ऐसे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसको सेग्रीगेट करेंगे तो पहले टर्म से प्रॉपर्टी 5 से क्या होगा, पहला टर्म के साथ सेम और फिर इसके साथ जब इसको अलग करेंगे तो दो कॉलम आइडेंटिकल होने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये वैल्यू वही रह जाएगी। तो इस पे इसकी डिटरमिनेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा a2 a3 a1 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स होता है। ये आपके 7 प्रॉपर्टी है। इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन एज एप्लीकेशन यूज होगा। देन यू राइट डाउन एंड रिपीट दिस।